رکھیں آئیے وقت ہے ہم کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں. ہماری آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 31ویں اور 32ویں آیت پڑھیں گے. یہ آگے 2 چیئرز خالی ہیں. جو پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی وہ مہربانی سے ادھر آگے آ جائیں. راجے آگے آ جائے بیٹے. مجھے پتہ پیچھے پنکھے کی ہوا نہیں جاتی ہے, اے سی کا بھی ادھر کم اثر ہو رہا ہے, تو مہربانی سے ادھر آگے آ جائیں. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 31ویں اور 32ویں آیت ہم پڑھیں گے اور ہنا تلاوت میں رہنمائی کریں گے. خدا کی زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے, بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. آمین. خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. آمین. خدا کا شکر ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سچائی کو 3 طرح سے پیش کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے وہ سچائی جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے, جو جھوٹ ہوتا ہے لیکن اس کو سچائی بنا کر بیان کیا جاتا. ایک سچائی ہوتی ہے جو ہاف ٹروتھ ہوتی ہے, جو آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہوتا ہے. وہ بھی سچائی ہے لیکن آدھی سچائی ہے. اور ایک سچائی ہے جو پوری اور مکمل سچائی ہے, جو کامل سچائی ہے. اور جب تک ہم کامل سچائی تک نہیں پہنچتے, جب تک ہم کامل سچائی کو نہیں جانتے, تب تک آزادی ممکن نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح سچائی کی بات کرتے ہیں, یہاں ٹروتھ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم اس سچائی کو جانو گے. اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے جو لفظ استعمال کیا ہے جاننے کے لیے, اس سے مراد صرف علم ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تجربہ ہونا ہے. جب تک ہم تجربے سے کسی سچائی کو نہیں دیکھ لیتے تب تک ہم اس کے صحیح گواہ نہیں ہو سکتے, تب تک ہم اسے صحیح طور پر جان نہیں سکتے. مثال کے طور پہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ چائے والا کپ پڑا ہوتا ہے, اس کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں ہاتھ لگانے کی. ماں باپ یا کچھ لوگ ان کو منع کرتے ہیں نہ کرو. تو کدی کدی لوگ پتہ کیا آندے نے چلو ایک باری لا لین دے اسو, پھر نہیں لان لگا کیونکہ پھر انہوں پتہ لگ جائے گا کہ گرم ہے. تو جب تک تجربہ نہ ہو تب تک ہم سچائی کو صحیح جان نہیں سکتے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم سچائی کا تجربہ کرو گے, اگر تمہارے تجربے میں یہ آئے گا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے, تبھی تم زندگی میں فیصلہ کرو. اور یہ فیصلہ کرنا ہر ایماندار کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے کہ سچائی کیا ہے. اور یہاں اس آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے محض اتنا کہا کہ سچائی سے واقف ہو, یعنی سچائی کو جانو, سچائی کا تجربہ کرو تو تمہیں کچھ حاصل ہوگا. اور وہ حاصل کیا ہے؟ وہ حاصل آزادی ہے. وہ حاصل یہ ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ گے. اور اگر وہ سچائی جس کی بات خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں ہم جان جائیں تو ہم حقیقت میں آزاد ہو جاتے ہیں. اب وہ سچائی کیا ہے اور کون سی آزادی اس سے حاصل ہوتی ہے, آج شام ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اپنی بائبل مہربانی سے اپنے ہاتھ میں رکھیں کیونکہ آج بہت سی آیات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے. آیات کے وسیلے سے آج میں کم بولوں گا, میں کوئی تفسیر نہیں کروں گا, میں کوئی مفہوم بیان نہیں کروں گا, لیکن خدا کے کلام, فقط خدا کے کلام میں سے آیات کے وسیلے سے ہم سیکھیں گے. اب ذرا میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16ویں آیت بڑی مشہور اور بائبل کا مرکز ہے یہ آیت. دنیا سے زبانی یاد ہے کسی کو؟
सबको याद है, सब बोलेंगे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब ये वो सच्चाई है जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें जानने की जरूरत है। ये सच्चाई है कि दुनिया में मौजूद हर इंसान गुनहगार है और वो खुदा से दूर है, वो खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था, और इसके बावजूद खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, बावजूद इसके कि इंसान गुनहगार था, बावजूद इसके कि वो अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपने तौर पर कभी खुदा तक पहुंच नहीं सकता था। खुदा ने उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और कैसे किया? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और क्यों बख्श दिया? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उसको जान ले। अब उस पर ईमान लाने से मुराद ये है कि वो उसका अपनी जिंदगी में तजुर्बा करे, वो उसका एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में करे कि वो कौन है, वो क्यों आया, उसने मेरे लिए क्या किया, और उस पर ईमान लाकर मैं कैसे बच सकता हूं। और बसीते ईमानदार, हमें ये एतमाद है, हमें ये यकीन है कि हम गुनहगार थे, हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से रास्तबाज ठहराए गए हैं, और उस पर ईमान रखते हुए जिंदगी बसर करने से हम खुदा की बादशाही में जाने वाले हैं। और यही ईमानदारों को दूसरी दुनिया से अलग करती है बात कि हम कौन थे, हम कौन हैं, और हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जानते हैं। और करंथियों को खत लिखते हुए पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से कहता है कि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर गिराया जाएगा तो हमें आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ की बनी हुई नहीं है, जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। अब इंसान का इस सच्चाई से वाकिफ होना बड़ा जरूरी है। जब रसूल कहता है हम जानते हैं, तो वो सारी दुनिया की बात नहीं करता, बल्कि वो अपनी और उन ईमानदारों की बात करता है जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से रास्तबाज ठहर चुके हैं। अब ये खुदा का अज़ली मंसूबा है। क्या है जी? अज़ली मंसूबा है, और अपने अज़ली मंसूबे को उसने अपने बेटे की सूरत में ज़ाहिर किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा राह, हक और सच्चाई मैं हूँ। राह भी वही है, हक यानी सच्चाई भी वही है, और उसी को जानने की जरूरत है। उसी के वसीले से हम खुदा को जान सकते हैं, उसी के वसीले से हम खुदा के पास आ सकते हैं, और उसी के वसीले से हम हमेशा खुदा के पास रह सकते हैं। ये हमें याद रखने की जरूरत है। एक और आयत पढ़ लें जरा, दूसरा पतरस उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत, पतरस का दूसरा खत उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाद लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए किसी किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद के पाक नाम में पढ़े और सुने जाने पर बरकत। आमीन। अब ये क्या है जी? ये खुदा की विल है, ये खुदा की मर्जी है, जिसे जानने की जरूरत है। यही सच्चाई है। खुदा ने अपना बेटा क्यों बख्श दिया? क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। पतरस कहता है कि वो तहम्मुल करता है। क्या करता है जी? तहम्मुल करता है। खुदा अपने वादे में देर नहीं करता। कभी कभी शायद हमें महसूस होता है कि खुदा भी जवाब नहीं दे रहा, लेकिन खुदा का जो वक्त है, खुदा अपने वक्त पर काम करता है, खुदा अपने वक्त के मुताबिक जवाब देता है, और खुदा अपने वक्त के मुताबिक अपनी नेमतें हम पर नाजिल करता अता करता है। वो अपने वादे में सच्चा है, देर नहीं करता, और जैसे बाज़ लोग समझते हैं बल्कि तुम्हारे बारे में तअम्मुल करता है। रसूल भी कहता है कि बाज़ लोग समझते हैं खुदा बड़ी देर कर देता है,
लेकिन खुदा देर नहीं करता। वो हमसे बेहतर जानता है कि कब किस चीज़ का वक्त है, बल्कि वो तहम्मुल करता है। अब हमारे लिए वो देर है। कभी कभी हम सोचते हैं जी अब खुदावंद यीशु मसीह को आ जाना चाहिए, 2000 साल गुजर गए और हम सुन रहे हैं कि यीशु ने कहा मैं आने वाला हूँ और आज तक नहीं आए। हम सोचते हैं, लेकिन खुदा हमारी तरह नहीं सोचता। हम कभी कभी खुद गर्जी से सोचते हैं कि मैं ईमान ले आया हूँ, मैं यीशु मसीह का पैरोकार हो गया हूँ, अब यीशु मसीह आज ही आ जाए मैं तो उसके साथ जाऊंगा। लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। पतरस के कहता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं, वो तहम्मुल किए हुए है, वो ठहरे हुए हैं ताकि सारी दुनिया के लोग ईमान लाएं। खुदा तो किसी एक इंसान को भी अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता। उसकी विल ये है, उसकी मर्जी ये है कि सब तौबा करें। पतरस कहता है कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। कोई दुख उठा के तकलीफ में से गुजर के भी अगर अपने गुनाह का इकरार कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो फिर वो बच सकता है। क्योंकि निजात के लिए, यीशु मसीह के पास आने के लिए तौबा पहला एक स्टेप है। सबसे पहले ज़रूरी है कि रिपेंट हो जाए, रिपेंटेंस ज़रूरी है, तौबा करे, फिर यीशु मसीह के सामने इकरार करे कि मैं गुनहगार हूँ। जिस तरह मुसरफ बेटा अपने बाप के पास आया, झुका और कहा कि बाप मैं तेरा और आसमान की नज़र में गुनहगार हुआ, यानी तेरा और खुदा दोनों का गुनहगार हुआ, मुझे माफ़ कर। जब एक गुनहगार तौबा करता है तो खुदा की मर्जी पूरी होती है, खुदा का तहम्मुल हल आता है, खुदा का इंतज़ार फ़ायदेमंद ठहरता है। हम तो सोचते हैं कि खुदा अब दुनिया ख़त्म क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हमें याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा इस्राएल से भी प्यार करता है। खुदा उन यहूदियों से प्यार करता है जिनको खुदा ने चुना, इब्राहिम की नस्ल को प्यार करता है जिनको खुदा ने चुना ताकि वो खुदा का जलाल लोगों पर ज़ाहिर करें। और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये भी है, याद रखें, जब तक इस्राएल मिन हैसुल कौम खुदावंद यीशु मसीह को मसीहा और नजात दहिंदा कबूल नहीं करता, जब तक वो खुदा की सच्चाई से वाकिफ नहीं हो जाता, जब तक वो खुदा की सच्चाई को जान नहीं लेता, तब तक इस दुनिया का खात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल कहती है, इंजील कहती है कि खुदा चाहता है सब तौबा करें। वो चाहता है कि वो जो अभी तक यीशु मसीह को पहचानने से मुनकर है, अभी तक उस पर ईमान नहीं है, वो भी ईमान ले आए। लेकिन जी एक बड़ी रुकावट होती है सच्चाई को जानने में, सच्चाई तक पहुंचने में। और वो रुकावट क्या है? वो रुकावट है जी हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन, खुदा का दुश्मन, खुदा का मुखालिफ। और वो कौन है? डेविल, इब्लीस, शैतान। वो नहीं चाहता कि हम तौबा करें और खुदा के पास आएं। वो नहीं जानता कि हम सच्चाई को जानें, उससे वाकिफ हों और आज़ादी और रिहाई पाएं। अगर आप मेरे साथ पढ़ें पहला पतरस 5वां बाब उसकी 8वीं आयत, तो वहाँ हमें पता चलता है कि हमारा दुश्मन जो है वो कौन है और वो कैसे काम करता है। पतरस का पहला खत उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस है, गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा दुश्मन कौन है? अब बाइबल हमें बताती है कि हमें होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दुश्मन कौन है? कोई इंसान नहीं है, कोई छोटी मखलूक नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है, इब्लीस है, जो ताकतवर भी है, जो चालाक भी है, जो होशियार भी है। और अगर हम उससे ज्यादा होशियार ना होंगे, उससे ज्यादा अपने अंदर बेदारी ना रखेंगे कि हम उसके मंसूबों को समझ सकें, तो हम उससे कभी जीत नहीं सकते। तो पतरस कहता है जी, पढ़े शाबाश आगे। ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। नाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बाद पतरस कहता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? इब्लीस है, जो कैसे काम कर रहा है? जो धाड़ता फिरता है। क्या करता है जी? जो गरजने वाले शेर की तरह धाड़ता फिरता है। मैं एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है, ज़रूर बताना चाहूँगा कि
बाइबल मुकद्दस में बहुत सी तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं खुदा और खुदा की कुदरत को बयान करने के लिए, लेकिन बहुत दफ़ा लोग खुदावंद यीशु मसीह को भी शेर कहते हैं। एक गीत भी है बड़ा मशहूर, शेर बब्बर यीशु शेर बब्बर। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह शेर नहीं है। यहाँ शेर किसको कहा गया है? शैतान को। पतरस कहता है कि तुम्हारा दुश्मन इब्लीस शेर की तरह गरजता है। वो जिस तरह शेर गरजता है और दूर दूर तक आवाज आती है, इसी तरह वो भी दहाड़ता फिरता है, गरजता फिरता है। जो लफ्ज जिसको लेके इस गीत को शायद लिखा गया या शायद इसकी शायरी की गई, वहाँ लफ्ज शेर इस्तेमाल नहीं हुआ। वहाँ क्या लफ्ज इस्तेमाल है? बब्बर। बब्बर इस्तेमाल है। यहूदा के कबीले का यहूदा के कबीले का बब्बर। बब्बर इस्तेमाल हुआ लफ्ज वहाँ, और बब्बर से मुराद है दलेर। शेर बहुत सारे होते हैं, टाइगर भी शेर होता है और चीता वगैरह, ये सारे जो हैं ये शेर के खानदान में आते हैं। लेकिन एक होता है शेर बब्बर। बब्बर उसकी दलेरी की वजह से उसको कहते हैं, और उसके पूरे जंगल पर रोब होने की वजह से कहते हैं। तो वहाँ अगर लफ्ज़ बब्बर इस्तेमाल किया गया तो उससे मुराद ये नहीं है कि यीशु मसीह शेर है। उससे मुराद ये है कि वो यहूदा के कबीले का वो दलेर है जो दुनिया की बादशाहतों पर गालिब आ सकता है, जो दुनिया की बादशाहतों को शिकस्त दे सकता है, जो दुनिया के बादशाह को शिकस्त दे सकता है, इसलिए उसे बब्बर कहा गया है। सो जी, पतरस कहता है कि जो तुम्हारा दुश्मन है, जो इब्लीस है, वो धाड़ता फिरता है। अब हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें अपनी आंखें खुली और अपने कान खुले रखने की ज़रूरत है। हमें पहचानने की ज़रूरत है कि जो आवाज़ आ रही है ये दुश्मन की है, एक ऐसे दुश्मन की जो नहीं चाहता कि मैं खुदा तक पहुंचूं, जो मुझे रोकता है सच्चाई तक जाने से, उस सच्चाई तक जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुमको जरा निकाले। दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब 26वीं आयत। मिल गया जी? जी। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदावंद की मर्जी के असीर होकर इब्लीस के फंदे से छूटे। आमीन। इब्लीस के फंदे से छूटे। इब्लीस क्या चाहता है जी? इब्लीस चाहता है कि इंसान उसके फंदे में रहे, इंसान उसकी गुलामी में रहे, इंसान उसके कब्जे में रहे। यही वजह यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम सच्चाई को यानी खुदा की मर्जी को नहीं जानोगे, तब तक तुम इब्लीस के कब्जे में रहोगे, उसकी गिरफ्त में रहोगे। इसलिए ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि वो सच्चाई को जाने, वो खुदा की मर्जी को जाने कि खुदा क्या चाहता है। और क्या चाहता है जी? खुदा चाहता है कि हर इंसान तौबा करे, हर इंसान तौबा करे और हमेशा खुदा के साथ उसके बेटे पर ईमान लाए और हलाक ना हो। दूसरा करंथियों दूसरा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। ताकि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसके चेलों से ना वाकिफ नहीं। और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को दराउस में आया और खुदावंद ने मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया। 11वीं और 12वीं आयत का दूसरा करंथियों दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत। ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले। अब इसका मतलब ये है कि वो इतनी आसानी से हमारी जान छोड़ने वाला नहीं है। वो बड़ा ढीठ किस्म का दुश्मन है। कभी कभी एक बार दुश्मन को शिकस्त तो वो वापस चला जाता है, लेकिन कुछ दुश्मन बड़े ढीठ किस्म के होते हैं। आपको पता कभी कभी बल्कि अक्सरियत में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो इब्लीस की गिरफ्त में होते हैं, जो बदरू गिरफ्तार होते हैं,
جب وہ دعا کے لیے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں دعا ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو پھر بیمار. میں ایک ایسی بچی کو جانتا ہوں جو کم از کم 5-6 سال سے بیمار ہے, اور وہ رہتی بھی وہاں ہے جہاں دعا ہی ہوتی ہے, دعا کرنے والوں کے گھر میں رہتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو دشمن ہے, جو ابلیس ہے, وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن ڈھیٹ قسم کا دشمن ہے. یہ دشمن ایسا ہے جو ہار نہیں مان رہا. یہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے. یسوع مسیح نے اس کو شکست دی ہے, لیکن وہ اس کے باوجود اپنا پورا زور لگاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خدا سے دور رکھے. تو رسول کہتا ہے جی ہمیں اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے, ہمیں اویئر رہنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس پر غالب آتے رہنے کی ضرورت ہے. اور جو ابلیس کا ایک اہم کام ہے خدا کے لوگوں کے خلاف, وہ یہ ہے کہ وہ سچائی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سچائی کو ہم سے چھپائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم سچائی تک پہنچیں, کیونکہ اگر سچائی تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں آزادی مل جائے گی, پھر ہم اس کے قبضے میں نہیں رہیں گے. اب وہ کیا کرتا ہے جی, وہ ہمیں جھوٹ میں اور آدھی سچائی میں الجھائے رکھتا ہے, اور یہی آج کل چرچز کے اندر بھی ہو رہا ہے. اور یہ جو ہاف ٹروتھ ہے یہ سب سے خطرناک ترین چیز ہوتی ہے, جس میں کچھ سچائی ہوتی ہے اور کچھ جھوٹ ہوتا ہے. مثلا جو فالس ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیف ہے اور اس سیف کا کوڈ ہے 1 2 3 4, اگر یہ لگائیں گے تو وہ کھل جائے گی. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سیف کیسے کھلے گی, میں کہتا ہوں جی کہ اس کا کوڈ ہے 5 6 7 8, تو یہ کیا ہوا جی, یہ فالس ٹروتھ ہے کہ آپ نے مجھ پہ یقین کیا, میں نے آپ کو غلط سچائی بتائی. وہ کبڈ نہیں کھلے گی, کہ کھلے گی, نہیں کھلے گی. اب دوسری سچائی میں نے آپ کو بتائی تھی ہاف ٹروتھ, جس کا بھی ذکر کرنے والے. میں کہتا ہوں جی یہ کبڈ ہے, اگر آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں, اس کا کوڈ ہے 3 4 5 6, تو یہ کیا ہے, آدھی سچائی. کیونکہ 3 اور 4 صحیح عدد ہیں, صحیح ان سے میں نے بتایا ہے, اور 5 اور 6 غلط, تو یہ کیا ہو گیا جی, آدھی سچائی. اور یہ زیادہ خطرناک, کیونکہ آپ کوشش کرتے رہیں گے لیکن وہ جو لاک ہے وہ نہیں کھلے گا. اسی لیے آپ کو پوری سچائی جاننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لاک کھل سکے. اب شیطان کیا کرتا ہے جی, ہمیں جھوٹوں میں اور آدھی سچائیوں میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے, وہ ہمیں سچائی تک آنے نہیں دینا چاہتا. یہی کیا اس نے ہماری بزرگ اماں حوا کے ساتھ, یہی کیا نا. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 1 سے 7 آیت تک ذرا نکالیں. آج ذرا تھوڑا سا ٹیچنگ لیسن ہے, تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو برداشت کیجیے گا, لیکن یہ بڑی سیکھنے کی اور اچھی چیز ہے. تیسرا باب اس کی پہلی 7 آیات. اور سانپ گلدشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا, اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا, سب سے پہلے اس نے کیا کہا, کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی سب درختوں کا پھل نہ کھانا. اب جھوٹ کیا ہے جی, جھوٹ بولا, جھوٹ کے ساتھ اس سے بات کی. خدا نے تو یہ نہیں کہا تھا کسی باغ کا درخت کا پھل نہ کھانا, کہا تھا صرف ایک جو بیچ میں ہے اس کا. آگے جی. عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں, پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے, بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. ہاں جی, کیا اس نے کہا, نہیں تم نہیں مرو گے, بلکہ کیا ہوگا, تمہاری آنکھیں
खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। अब ये क्या था जी? हाफ ट्रुथ। आंखें तो खुल जाएंगी लेकिन खुदा की मानिंद हो जाओगे, ये नहीं हुआ। और इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही खातून ने यानी हव्वा ने वो फल लिया, उसके शौहर ने आदम ने भी खाया, तो उनकी आंखें तो खुल गईं, लेकिन वो खुदा की तरह होने की बजाय खुदा से बहुत दूर जा चुके थे। और यही इब्लीस चाहता है, यही वो हमारी जिंदगी में करना चाहता है कि हम आधी सच्चाई उससे सुन के अगर उस आधी सच्चाई पर अमल करेंगे, वो ऐसी खतरनाक सच्चाई है कि उस आधी सच्चाई पर अमल करके हम खुदा से बहुत दूर चले जाएं। ये उसका तरीका है कि कैसे काम करना है, ये उसका तरीका है कैसे बहकाना है। आपने कभी रैटल स्नेक देखा है? अगर आप YouTube पे देखें या नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे, तो रैटल स्नेक की जो दुम होती है उसके पीछे एक रैटल बना होता है, पंजाबी जिन्हें छड़कना ध्यान देने, वो छोटा सा ना एक उसकी दुम के ऊपर होता है जिसमें आवाज़ पैदा होती है। अब वो जब कुंडली मार के बैठता है तो अपनी दुम को उठा लेता है और मुंह नीचे कर देता है, अपनी दुम को मुसलसल हिलाता रहता है। और कभी कभी जो चूहे हैं, छोटी छिपकलियां हैं या कोई और जानवर जो जिसे वो खा सकता है, मेंढक, जब वो उसके करीब आते हैं पकड़ने के लिए तो वो फौरन उन पर हमला करता और उन्हें खा जाता है, मार देता है उनको। इब्लीस भी बिल्कुल इसी तरह करता है, वो कुंडली मारकर बैठ जाता है, वो अपना आप हम पर जाहिर नहीं करता, वो किसी और शख्स को, किसी और चीज़ को हमारे सामने पेश करता है, और जब हम उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे जाते हैं तो वो हमें दबोच लेता है, हमें अपने कब्जे में ले लेता है। और जब उसके कब्जे में आ जाते हैं तो फिर हम खुदा से बहुत दूर चले जाते हैं, फिर हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चलना शुरू कर देते हैं, फिर हम गुनाह में ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। तो जी इससे बचने का तरीका क्या है? अब ऐसे चालाक दुश्मन से बचने का तरीका क्या है? पूरी सच्चाई, ओनली वन, कि पूरी सच्चाई को जाने, तलाश करें, तहकीक करें कि जो बताया जा रहा है क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि हर शख्स जो बाइबल लेकर आपके सामने आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो खुदा का खादिम है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी सच्चाई आपके सामने पेश कर रहा है, हो सकता है वो आधी सच्चाई आपके सामने पेश कर रहा है। इस तरह कुछ लोग जो हैं वो ईमानदार होने का दावा करते हैं, बाइबल ही में से आयात पढ़ के आपको सुनाते हैं और बाद में आपको कहते हैं कि जी खुदावंद यीशु मसीह तो खुदा नहीं है। मैंने एक शख्स से जो अपने आप को यहोवा का गवाह कहता था, मैंने उससे कुछ देर गुफ्तगू की, तो उसने बड़ी खूबसूरती से गुफ्तगू का आगाज़ किया, बाइबल में से आयात पेश की और फिर इस नतीजे पर लाकर मुझे खड़ा करने की कोशिश की कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, क्योंकि वो सारी मखलूक़ात से पहले है और खुदा ने उसको सबसे पहले खलक किया। तो मैंने कहा कि भाई आपको बाइबल सही तौर पर पढ़ने की ज़रूरत है। इस आयत में जो अल्फाज हैं उसका ये कतई मतलब नहीं है कि यीशु मसीह मखलूक है, बल्कि हम ये ईमान रखते हैं कि वो मखलूक नहीं बल्कि खालिक है। और निकाया के अकीदे में हम इस बात का इकरार करते हैं कि वो सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। यूहन्ना अपनी इंजील के पहले बाब में कहता है सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। वही कलाम है, वही कलमा है जिसके वसीले से कायनात वजूद में आई। तो जी ज़रूरी ये है कि इस चालाक दुश्मन इब्लीस से बचने के लिए, गुनाह की कैद से बचने और रिहाई पाने के लिए हम क्या करें जी? पूरी सच्चाई को जाने। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत तक जरा पढ़ें। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 21वीं आयत से 23वीं आयत के आखिर तक। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला
और तेरे नाम से बहुत से मुझसे नहीं दिखाए, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। अब इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो आधी सच्चाई बताने वाले हैं, जो बाइबल को अपने मकसद के लिए ज़्यादा और आपकी निजात के लिए कम इस्तेमाल करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी कुछ लोग इस बात में मेरी मुखालफत भी करते हैं, नहीं कि आप दायकी की तालीम क्यों नहीं देते। मैं कहता हूँ इसलिए क्योंकि दायकी जो है ये पुराने अहदनामे का कॉन्सेप्ट है, मसीहियों पर दायकी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मसीहियों पर इससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी है। इंजील में यीशु मसीह ने उस बेवा की तमसील देकर, जिसने 2 दमड़ियाँ दी थी, कहा कि इसने सबसे ज़्यादा दिया। अगर आपके पास 1000 रुपया है और आप खुदा के पास आए और उस 1000 में से आप 100 रुपया निकाल के खुदा के नाम के लिए दे देते हैं, तो आपके पास बचे हैं पैसे, कितने बचे हैं? 900। इसका मतलब आपके पास ज़्यादा है और जो खुदा के लिए दिया वो क्या है? थोड़ा है, कम है। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही है, वो थोड़ा है और जो आपके पास है वो ज़्यादा है। अब अगर आपके पास 100 है और आप 100 ही खुदा की राह के लिए दे के चले जाते हैं, या अगर आपके पास 50 हैं, आपके पास 10 हैं, आपके पास 5 हैं और आप वही खुदा के लिए दे के चले जाते हैं, तो ज़्यादा किसका होगा जी? जो कुछ भी पास था, ज़्यादा किसके पास हो गया? आपके पास या खुदा के पास? खुदा के पास, क्योंकि जो कुछ आपके पास था आपने किसको दे दिया और आप क्या हो गए? खाली। अब खुदा देख रहा है कि ये क्या हो गया है? खाली। इसकी ज़रूरतें हैं। अब खुदा जो है वो बड़ा मेहरबान है। खुदा ने एक सिस्टम बनाया। जब हम खुदा के पास आते हैं, उससे मांगते हैं, उसके साथ वफादारी का इजहार करते हैं, तो यकीनन वो हमें अपनी नेमतों से नवाजता है। वो कई गुना हमसे, जो हम देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें अता करता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि आजकल दुनिया में जो पास्टर हजरात हैं, ख़ास तौर पर जो रिफॉर्म चर्चेस के लोग हैं, वो अपनी बातों में इख्तलाफ इस तरह कर जाते हैं कि जब दायकी की बात होती है तो वो कहते हैं हाँ जी देनी चाहिए, दायकी दिया करे। लेकिन अगर उन्हीं की जमात का कोई शख्स ये कहे कि जी हमने अपने बेटे का खतना कराना है पादी साहब, तो फिर वो बड़े खिलाफ हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਤਨਾ ਕਰਾਓ? ਉਹ ਖਤਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਆਂਦਾ ਨਾ ਖਤਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਖਤੂਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਖਤਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਨਾ ਨਾ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ। अगले इतवार पैगाम दायकी तो दे रहे होंगे। तो मुझे बताएं कि ये जो दायकी है 10वां हिस्सा है, ये कहाँ से है? ये कहाँ की तालीम है? ये भी शरीयत की तालीम। इसका मतलब कंट्राडिक्शन है कि जहाँ अपना फ़ायदा है वहाँ हम कहते हैं जी ये ठीक है, जहाँ लोगों की निजात का काम है वहाँ लोग कहते हैं नहीं जी ये ठीक है। हाफ ट्रुथ। तो खादम की सूरत में काम कौन कर रहा है? इबलीस, शैतान, जो नहीं चाहता कि आपकी आंखें पूरी तरह से खुलें। मैं हमेशा कहता हूँ बाइबल को मैंने कभी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मुझे एक दफ़ा एक शख्स ने कहा पादी साहब कलाम च लोगों समझाया करो, चंदा दिया करो। तो मैंने कहा कलाम इसलिए नहीं है कि मैं लोगों को इसके वसीले से बताऊं कि वो मुझे चंदा दिया करें। कलाम इसलिए है ताकि मैं लोगों को बताऊं कि वो खुदा को कैसे जान सकें। अगर खुदा ने किसी के दिल को तैयार करना है, अगर खुदा ने किसी के दिल को तैयार करना है तो वो ज़रूर करेगा और वो खिदमत भी करेगा। और आप इतनी जमात बैठी है, मुझे बताएं मैंने आपको कभी कहा हो किसी चीज़ के लिए कि जी हमने खाना बनाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है? हमने कभी किसी को कहा हो? जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है। आज भी भाई आज़म की तरफ से खाना, आज उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन है, वो केक भी लाए हैं, खाना भी तैयार किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि तो हमें पहचानना है लोगों को, कलाम सुनाने वालों को
जो अपने आप को खादम कहते हैं कि वो सही बात कर रहे हैं या उनके पीछे कोई और चीज़ छुपी हुई है जो हमें पूरी सच्चाई तक जाने नहीं देती। तो यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि ये अंधे राह दिखाने वाले हैं। कैसे जी? अंधे राह दिखा, और अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और फिर यीशु मसीह बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि ये जब खुदावंद का दिन होगा, जब बादशाही का वक्त होगा, तो बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने तो तेरे नाम से इबादतें की हैं, दुआएं की, मौजज़े किए, तो हमें भी बादशाही में आने दे। तो यीशु मसीह कहता है, मैं कह दूंगा मैं तुमको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में ना कभी खुद सच्चाई को जाना और ना लोगों को सच्चाई तक पहुंचने दिया। उन्होंने कभी लोगों को यीशु मसीह तक आने नहीं दिया। और मैं एक बड़ा खूबसूरत बयान सुन रहा था एक खादिम का, वो कह रहे थे कि आज कलीसिया को ये पसंद है कि कलीसिया को ये कहा जाए, अगर आपने शिफा पानी है तो बुध मीटिंग में आ जाए, आपने शिफा पानी है तो इतवार की मीटिंग में आ जाए, आपने शिफा पानी है तो जुमेरात की मीटिंग में आ जाए। तो लोग ये सुनना चाहते हैं, वो ये सुनना नहीं चाहते अगर आपने शिफा पानी है यीशु के कदमों में आ जाए, आपने शिफा पानी है उसके सामने झुक जाए। ये सच्चाई है। ये बुध की इबादतें, हफ्ते इतवार की, जुमेरात की इबादतें, ये अपने फायदे के लिए कहा जाता है जी वहां आए। कुछ लोग लोगों को मना कर देते हैं जी, फलाने गिरजे नहीं जाना, फलाने गिरजे नहीं जाना, फलाने गिरजे नहीं जाना, सिर्फ इत्थे ही आना है। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹਦੀਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਦੀਆ ਹੀ ਕਬੂਲ नहीं ਹੁੰਦਾ। लोग डर जाते हैं, बेचारे मासूम होते हैं, उनको सच्चाई का पता नहीं होता। याद रखें, कबूलियत वहां होती है जहां आप रूह और सच्चाई से इबादत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ इबादत होगी, प्रस्तुत होगी, फिर ही सही ताजीम होगी। कभी नहीं कहा कि क्वायर के साथ मिलके गाएंगे, मिलके इबादत, फिर ही मेरी सच्चाई के साथ प्रस्तुत होगी या सही होगी। यीशु मसीह ने कहा खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करे, बैंड के साथ नहीं, बाजों के साथ नहीं, या क्वायर के साथ ही नहीं, जहां 2 या 3 रूह और सच्चाई से मामूर होकर वो बगैर म्यूजिक के भी इबादत करते हैं, दुआ करते हैं। याद रखें, खुदावंद उनके बीच में मौजूद है, वो उनके दरमियान में है, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा है। हमने शुरू में जान लिया है कि वो वादों में सच्चा है। और मैं चाहता हूं कि हम आज के इस लेसन को यहाँ ख़त्म करें और अगले हफ्ते हम इसका जो बाकी हिस्सा है उसको सीखेंगे, गौर करेंगे और कोशिश करेंगे। आज तक हमने ये सीख लिया है अब तक कि सच्चाई 3 तरह की है, गलत सच्चाई, आधी सच्चाई और पूरी सच्चाई। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई को जानो, और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है, खुदा चाहता है कि हम सब बच जाएं, हम सब खुदा के गजब का शिकार ना हों। लेकिन एक दुश्मन है। कौन है जी? एक दुश्मन है, इब्लीस, जो बड़ा चालाक है, होशियार है, वो हमें सच्चाई तक पहुंचने नहीं देता। और इसीलिए वो उन लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है जो पुलपट पर खड़े होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो उनको इस्तेमाल कर सकता है ताकि पूरी सच्चाई आप तक ना पहुंचे। हमें उस दुश्मन पर गालिब आने की जरूरत है। और कैसे गालिब आएंगे? सच्चाई को जानकर। जब वो झूठ बोलेगा तो उसे सच बताएंगे, शर्मिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यीशु मसीह ने कहा ऐ इब्लीस दूर हो जाओ, और फिर वो उसके पास से दूर चला गया। मसीह में मेरे अजीज बच्चों, इब्लीस पर गालिब आना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है और वो नहीं चाहता कि हम सच्चाई तक पहुँचें और आज़ादी हासिल करें, रिहाई पाएँ और खुदा की बादशाही का हिस्सा बनें। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे और सच्चाई तक पहुँचने की तौफीक अता करे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें और खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। जिस किसी को खुदा का रूह कायल करता है वो कलाम पाक इन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। दुआ मांगे। हालेलुया। मेरे जिंदा जली खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तू आज अपने बंदा के वसीला से हम तक अपने जिंदा कलाम को पहुँचाया, किया कि हम तेरी सच्चाई को जानकर और खुदावंद हम सब
तो इस सच्चाई के पीछे चले खुदा क्योंकि तू राह और ज़िंदगी है यीशु राजा। तू हमारी ज़िंदगियों का खुदा मालिक है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा हर इंसान